Okay, welcome. So, this is part 2 of the growth portfolio or the growth analytics lecture. इससे पहले हम लोग basically year on year growth discuss कर चुके थे. So let's talk about compounding growth. So what is compounding growth? आप लोगों ने you must have encountered the idea of compounding in finance or in business maths, where you basically compute the compounded interest for an amount of which is invested for n number of years. And the way compound interest is different from simple interest is that under simple interest the interest is paid only for the principal amount, whereas on compounding interest the principal as well as the earned interest gets basically the benefits of the interest amount or the interest percentage that is basically applied by the bank. So in compounding growth something similar happens. So agar aapne basically if you're interested not just in 1 year, not in just computing the growth of 1 year, but that of let's say 4 years, 5 years, anything more than 1 year. So what you need is basically a compounding growth. So याद रखें, अगर आपने अपनी 2020 की सेल्स को कंपेयर करना है 2015 की सेल्स से, लेट्स से आपका स्टोर जो था, आपका बिजनेस जो था वो 2015 में स्टार्ट हुआ था और अब आप 2020 में ये देखना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कितना एक्सपैंड हुआ है. So what you need to do is basically you need to find the compound growth, not the year on year growth, because year on year growth जो है वो आपको सही पिक्चर नहीं दिखाएगा. You can imagine कि लेट्स से अगर 2015 से 2016 तक आपकी सेल्स जो थी वो ज़्यादा हुई, ठीक है, और फिर उसके बाद 2-3 साल कम रही, लेकिन फिर 2020 आने के बाद अचानक से दोबारा ज़्यादा हो गई. तो सिंपल इंटरेस्ट जो है चूँकि वो सिर्फ एक बेस ईयर को देखता है, सो इन दिस केस इट वुड ओनली लुक एट 2015. सो वट एवर हैपेंड इन 2016 और 17 एंड 18 एंड 19, उसका इफेक्ट बेसिकली आपको अपनी ग्रोथ की फिगर में नज़र नहीं आएगा. सो दैट्स वाई जब आप कंपाउंडिंग करते हैं तो वो हर साल के फिगर को बेसिकली कंपाउंड करके एक कम्युलेटिव फिगर आपको जो आखिर में मिलता है वो आपको एक ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेटिव फिगर देता है फॉर योर ग्रोथ. Under compounding growth, we are going to look at two ideas: value at future price and CAGR. Technically, essentially, they are very much related concepts. So let's talk about value at future period. So by compounding, managers adjust growth figures to account for the iterative effect of improvements. So याद रखें, जैसे मैंने भी बात की थी कि you have to look at the iterative effects. हर साल basically 2015, 2016, 2017, 2018 जितने भी ups and downs आ रहे हैं, you have to basically account for it. For example, 10% growth in each of 2 successive years would not be same as a total of 20% growth. So याद रखें, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 2015 के बाद अगर 2020 तक अगर आप अपनी सेल्स देखना चाहते हैं और if you want to say that every year you're going to make a 10% का progress और 10% की growth, तो 5 साल बाद बेसिकली क्या होगा. So जैसे मैंने कहा कि चूँकि 5 साल की बात हो रही है और अगर हर साल जो है लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अगर हर साल 10% का इंक्रीज आ रहा है, सो इज दैट इक्वल टू 10 + 10 + 10, 5 × 10 को अगर आप ऐड करें, सो इज दिस ग्रोथ गोइंग टू बी इक्वल टू 50%. So those of you who are pretty much familiar with the idea of compounding, they would know that no, that won't be the right answer. In fact, जो आपकी एक्चुअल ग्रोथ होगी वो 50% से ज़्यादा होगी, ठीक है. We'll see in a minute how that happens. So the reason growth, so what's the reason for this? So growth in the second year is built upon the elevated base. याद रखें, अब आपकी जो बेस है वो एलिवेट हो गई है, उसमें प्रिंसिपल प्लस ग्रोथ का अमाउंट भी आ गया. सो अगले साल जब 10% होगा, सो उसमें प्रिंसिपल खाली नहीं होगा, बल्कि उस प्रिंसिपल के साथ साथ, प्रिंसिपल से यहाँ मुराद आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी जो चेंज आई है, जो ग्रोथ आई है, उसका भी असर होगा. ऑलराइट, सो इस एग्जांपल को मैं यहाँ पर स्किप करूँगा, मैं एक एक्चुअल एग्जांपल की तरफ यहाँ पर आपको लेकर आऊँगा. उसी एग्जांपल को थोड़ा बेहतर तरीके से डिस्प्ले या रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो ओवर अ 3-year पीरियड $100 कंपाउंडेड एट 10% ग्रोथ रेट यील्ड्स 133.10. सो अगर आपसे कोई पूछे कि जी $100 हैं और वो हर साल 10% ग्रो कर रहा है, सो यू माइट be tempted to think okay, if it's $100 और हर साल अगर वो 10% कर रहा है, 10% single time is $10, so 3 times it would be, let's say, another $10 and another $10. So
सो दिस कम्युलेटिवली वुड बी इक्वल टू $30. सो टोटल आपके पास 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे? $30, $130 हो जाएंगे. बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे आर सेइंग दैट नो इट वुड बी $133.1. सो ये 3.1 कहाँ से आया है? सो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ईयर जीरो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ईयर 0 टू ईयर 1. सो आपको 100 प्लस 10% मिलेगा. ठीक है, सो दैट वुड बी $110. ईयर 2 में याद रखें इट्स नॉट 100, दिस इज वेयर द डिफरेंस लाई. अब आप सिर्फ 100 को बेसिकली अकाउंट फॉर नहीं करें, आप यहाँ से ये फिगर उठा रहे हैं 110, और अब आप उस 110 का 10% ले रहे हैं विच वुड गिव यू 121. सिमिलरली यहाँ पर अगेन यू डोंट हैव 100 बट 121, और ये 121 का 10% आपको मिल रहा है विच gives you a cumulative figure of 133.1. So this is how actually your compounding works. So इसका जो फॉर्मूला है, this is the formula जो कि possibly देखने में बड़ा अजीब गरीब नजर आ रहा है because it's pretty broad. So अगर मैं इसको कुछ सिंबल्स में तब्दील कर दूं, लेट्स से अगर वैल्यू इन फ्यूचर पीरियड को मैं v कर दूं, करंट वैल्यू को मैं अगर p कर दूं, ठीक है. CAGR परसेंटेज है. व्हाट इज CAGR? इट्स फॉर नाउ अभी हम 2 मिनट में इसको डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन कॉल इट द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या ग्रोथ रेट. सो लेट्स कॉल इट R, एंड N इज द नंबर ऑफ पीरियड्स N और नंबर ऑफ ईयर्स N. सो अब इसको अगर हम इन सिंबल्स के साथ लिखें, सो दैट वुड बी V इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज़्ड टू द पावर N, एंड आई सपोज कि दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फार्मूला स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने फाइनेंस, बेसिक फाइनेंस अगर इवन पढ़ा हुआ है या बेसिक बिजनेस मैथ्स पढ़ा हुआ है. ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक कंपाउंडेड इंटरेस्ट फार्मूला. सो यहाँ से आपको अंदाजा होता है कि ये बेसिकली फार्मूला है, ये फाइनेंस का नहीं है, ये मैथमेटिकल फार्मूला है. सो कहीं पर भी अगर कंपाउंडिंग हो रही है, फॉर मार्केटिंग है या फॉर HR है, या अगर आपके पास फाइनेंस है, जो भी है, सो बेसिकली ये फार्मूला हर जगह कंपाउंडिंग में इस्तेमाल हो सकता है. ऑलराइट. So using the formula we can calculate the impact of 10% annual growth rate. So अगर आपने compounded annual growth rate 10% मालूम करना है, so how would you do that? So your value in year 0 would be how much? So that is 100. Multiply that by 1 plus the growth rate which was R, and this right here is raised to. ठीक है, this is the symbol for power. Let me correct it. ठीक है. If you want to get rid of this, अगर ये आप confusing लग रहा है, so to get rid of this, and I can put a small n over here. ठीक है, so it's the same thing. याद रखें, V is equal to P into 1 plus R raised to the power n. ठीक है, you plug your numbers into it, and eventually what you get is 133.1. So it's again a pretty simple formula, a pretty common formula. Now let's talk about CAGR. ठीक है, and CAGR stands for compound annual growth rate. So once again this is a rate. ठीक है, फाइनेंस में you call it rate of return, यहाँ पर we call it CAGR, compounded annual or compound annual growth rate. It's the same thing, just has 2 different names. So the CAGR is a constant year-on-year growth rate applied over a period of time, given starting and ending values and the length of the period involved. It can be calculated as follows. So CAGR को अगर आप कैलकुलेट करना है, so how would you do that? So your CAGR percentage is equal to the ending value, ठीक है, and the starting value. What are the ending value and what are the starting value? So ending value is the amount जो कि after growth rate apply करने के बाद आपको मिलता है. Starting value is the amount जहाँ basically which is year 0 practically, जहाँ पर अभी तक किसी किस्म की कोई growth हुई नहीं है. So starting value is your value or is your sales at year 0. Ending value is your sales after n number of years. You divide that and you take a power of 1 divided by n, and yes, naturally n would be the number of years given अगर आप number of years में calculate कर रहे हैं. ठीक है, and you subtract that by -1. Now once again interestingly ये formula जो है ये भी काफ़ी हद तक एक फेमिलियर ही फॉर्मूला है. मे बी अभी देखकर आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन इन अ वाइल आप बेसिकली विद इन 1 मिनट में आपको अंदाज़ा आपको प्रूफ कर दूंगा कि जी दिस इज़ अ फॉर्मूला जो कि यू आर एक्चुअली वेरी वेल फेमिलियर विद. अच्छा, सो लेट्स से कि
वी वांट टू बेसिकली आइसोलेट एंडिंग वैल्यू, हम एंडिंग वैल्यू को आइसोलेट करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास भी अगर देखें तो ये जो वैल्यू एट फ्यूचर पीरियड है, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडिंग वैल्यू। ये फ्यूचर पीरियड की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली एक एंडिंग वैल्यू होगी। सो लेट्स सी क्या ये दोनों एंडिंग वैल्यू सेम है या नहीं है। सो इसको बेसिकली आइसोलेट करने के लिए व्हाट वी डू इज के सबसे पहले हम ये -1 को दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे। सो व्हाट वील गेट इज 1 + CAGR % is equal to, on right hand side we'll have EV ending value divided by SV starting value raised to the power 1/9, ठीक है। Now since we want this ending value, so what we'll do is we'll take a root on both the sides, ठीक है। So हम लोग क्या करेंगे, हम लोग basically nth root ले लेंगे, fine, थोड़ा सा overlap हो रहा है, so nth root ले लेंगे, this is equal to nth root लेने के बाद हमारे पास ऑन द राइट हैंड क्या रह जाएगा, विल बी लेफ्ट विद एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग वैल्यू, एंड हियर विल हैव, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, वी ऑलरेडी हैड एन nth रूट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द nth रूट we'll be taking the power of n, my bad, my mistake. So to get rid of this 1/n, what we need to do is basically we need to take, बल्कि मैं इसको थोड़ा क्लियर करके नीचे ही लिख देता हूँ, we need to take CAGR % raised to the power n is equal to EV divided by SV raised to the power 1/n times n, ठीक है। ये दोनों n's जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, so we'll be left with EV divided by SV 1 + CAGR % raised to the power n. Now it's pretty simple and easy to basically isolate SV. So SV हमारे पास EV यहाँ पर आ जाएगा and we'll multiply SV on both the sides. So what we'll get is SV into 1 + CAGR raised to the power n. अगर मैं basically ये वेरिएबल्स थोड़े से चेंज कर दूँ, EV की जगह मैं V कर दूँ, SV की जगह P कर दूँ, और 1 + CAGR की जगह सिर्फ R बना दूँ, सो वंस अगेन यू विल गेट द सेम फार्मूला। सो इसका कहने का मेरा मतलब ये था कि यही फार्मूला है। आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए, एंडिंग वैल्यू चाहिए, तो आप इस फॉर्मेट में इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बेसिकली CAGR चाहिए तो आपको बेसिकली ये फॉर्मेट यूज़ करना है, बट इट्स एसेंशियली एग्जैक्टली द सेम फार्मूला, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू फार्मूलाज, ठीक है। There's this live example which shows कि अगर आपके पास let's say the example says, or the question says that let's assume we have the result of the compounding growth observed in the previous example, but we don't know what the growth rate was. Okay, so कहते हैं कि जी आपके पास, और normally हमारे साथ होता यही है कि हमारे पास basically starting value होती है, ending value होती है, हमारे पास CAGR नहीं होता। We know that the starting value was $100, ending value was 133.1 and the number of years was 3. तो 3 साल में बेसिकली आपकी जो सेल्स थी वो 100 से 133.1 पर आ गई। We can simply enter these numbers into the CAGR formula to derive the CAGR. So यहाँ पर आप प्लग करेंगे ending value divided by starting value raised to the power 1 divided by 3, solve all of this and then -1. Eventually what you get is 10%. Now see, एक गलती जो लोग कर सकते हैं वो ये है कि people start thinking that the starting value was 100, ending value was 133.1, so the difference or the change was 33.1, ठीक है, और 33.1%, ठीक है ना। 100 का और 133.1 में जो डिफरेंस है वो 33.1% का डिफरेंस है। और अगर आपको पर एनम आपको ग्रोथ रेट चाहिए, सो एक मिस्टेक जो लोग कर सकते हैं वो इसका डायरेक्टली एवरेज लेना कर सकते हैं, दैट 33.1% को आप 3 से डिवाइड कर दें एंड यू विल गेट समथिंग क्लोज टू 11%, विच इज़ नॉट द केस। एक्चुअली आपका जो आपकी जो ग्रोथ रेट है दैट इज नॉट 11%, दैट इज एक्चुअली 10%. So once again, this is how you compute your compounded annual growth rate. Again, it's also a pretty simple, pretty common idea, and इससे बेसिकली आप इस किस्म की जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी आखिर में बिल्कुल आपको करके बताई हैं, इससे आप ये मिस्टेक्स करने से आप बच सकते हैं. थैंक यू.